جب بھی ہمارے گھر فاطمہ الزہرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی ہمارے گھر تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے دروازے پر جاتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے لاتے اور اس جگہ بیٹھاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنی سیٹ پر رکھتے، ان کو خوش آمدید کہتے، ان کو حال احوال پوچھتے، ان کی حالت پوچھا کرتے۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری اسی اللہ وحدہ لا شریک کی للائی کو زیبا ہے، خاص و مخصوص ہے، سزاوار ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو روزی رساں ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو ہمیں سانسیں لینے کی اجازت دے رہا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو مدبر الامور ہے، جو منتظم الامور ہے، اور جس نے انسانوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس کائنات فانی کے اندر نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل اور لمبا سلسلہ چلایا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جا کر کے جس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصی طور پر ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مبارکہ و مطہرہ پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میرے دینی و اسلامی بھائیوں، میرے عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع، وہ ٹاپک انتہائی حساس اور سینسیٹیو ہے۔ میرا موضوع ہے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے۔ میرے بھائیوں، اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام خداوندی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ایک پرائس لیس گفٹ اور تحفہ ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بڑے ذہ نصیب ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد بنایا ہے۔
औलाद की क्या कदर व कीमत है, औलाद का क्या मकाम व मर्तबा है, औलाद की क्या अजमत और इसकी अहमियत है, औलाद का क्या इंपॉर्टेंस और महत्व है। अगर आपको मालूम करना हो, अगर आपको जानना हो, तो आप जरा उनसे दरियाफ्त करें, उनसे पूछें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से महरूम कर रखा है, जो साहिब औलाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को हमारी दुनियावी जिंदगी के लिए ज़ेबो ज़ीनत कहा है। कुरान मुकद्दस ने औलाद को ज़ेबो ज़ीनत कहा है, औलाद को हमारी जिंदगी के लिए डेकोरेशन कहा है, हमारी औलाद को हमारी जिंदगी के लिए अट्रैक्शन का नाम दिया है। आप यकीन माने, अगर औलाद ना हो तो हमारी जिंदगी बेरौनक हो जाएगी, औलाद ना हो तो हमारी जिंदगी बेरौनक हो जाएगी। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में अगर खुशी है तो औलाद की वजह से है। ये औलाद हमारी जिंदगी को रंगीन बनाती है, ये औलाद हमारी जिंदगी में रंग भरने का काम करती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के 15वें पारे में सूरह कहफ की आयत नंबर 46 के अंदर, आयत नंबर 46 के अंदर फरमाया है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, यकीनन तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की ज़ेबो ज़ीनत है। अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, और वो अमाल जो बाकी रहने वाली हैं, वल बाक़ियातुस सालिहात, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारा सदका व खैरात करना, तुम्हारा नेक काम करना, तुम्हारा अच्छा काम करना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सवाब के एतबार से और उम्मीद के एतबार से बहुत ही अच्छी चीज है। मेरे भाइयों, ये औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये औलाद जो हमें दी है, इसकी मोहब्बत और इसकी उल्फत, मोहब्बत की शफकत और रहमत, ये हम इंसानों के दिलों के लिए सुकून का जरिया बनाया है और हमारे दिलों में इसकी मोहब्बत को रख दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के 3 पारे में सूरह आले इमरान के अंदर फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, महबूब और पसंदीदा चीजों की उल्फत व मोहब्बत इंसान के दिलों में रख दी गई है। ये फितरत है, ये नेचुरल है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, खा वो बीवियों की मोहब्बत हो, औलाद की मोहब्बत हो, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, या सोने और चांदी के जमा करदा खजाने हों, इन चीजों की उल्फत व मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिलों में वदियत कर दी है। मेरे भाइयों, औलाद से उल्फत व मोहब्बत रखना, औलाद से मोहब्बत करना, औलाद के ताल्लुक से अपने दिलों में शफ़क़त रखना, रहमत रखना, ये नबियों की सुन्नत रही है। आप जरा नबियों के वाक़यात को आप उठा करके देखें, खुसूसी तौर पर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ मस्जिद के अंदर तशरीफ हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। फिर आपको ये खबर मिलती है कि हजरत इब्राहीम की तबीयत खराब है, हजरत इब्राहीम बीमार हैं। उस वक्त हजरत इब्राहीम जो आपके बेटे थे वो अवाली के इलाके में थे, मदीने के बाहर अवाली के इलाके में रह रहे थे। जब उनकी बीमारी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची तो आप तड़प उठे और उनसे मिलने के लिए अपने सहाबाए किराम के साथ तशरीफ ले गए। जाकर के देखा कि बेटा जाकनी के आलम में है, अब तब की हालत हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। बेटा सामने है, बेटा मरने के कगार पर है, अब उसकी रूह निकलने वाली है और आपकी आंखों में आंसू जारी हैं। वो अपने गोद में अपने हाथों पर अपने बेटे को उठा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़नु, मेरी आंखों से आंसू जारी हैं, मेरा दिल रंजीदा खातिर है, मेरा दिल उदास है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से वही बातें कहेंगे जिससे हमारा
रब राजी हो। अलबत्ता ऐ इब्राहिम इन्ना बिफिराकिका लमहज़ूनून, हम आपकी जुदाई पर गमज़दा हैं, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से अम्मा आयशा बयान करती हैं कि जब भी हमारे घर फातिमतुज़ ज़हरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थी हमारे घर तशरीफ लाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके दरवाजे पर जाते और उनके हाथ को पकड़ करके लाते और उस जगह बैठाते जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखा करते थे। अपनी बेटी को अपनी सीट पर रखते, उनको खुश आमदेद कहते, उनको हाल अहवाल पूछते, उनकी हालत पूछा करते और फिर उनको अपनी जगह पर बैठा करके उनके हाथों को और उनकी पेशानी पर बोसा दिया करते थे। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत हमें बता रही है कि हमें अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत करनी है। आप गौर कीजिए, मैंने दो वाकयात आपके सामने रखे जिनके अंदर औलाद के साथ एक बाप किस तरीके से मोहब्बत करता है उसको बयान किया गया है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर जहां ये बात बयान किया है, कुरान मजीद के अंदर जहां इस बात को मेंशन किया गया है कि ओ लोगों, औलाद तुम्हारी दुनियावी जिंदगी की ज़ेबो ज़ीनत है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपनी औलाद से उल्फत व मोहब्बत करनी है तो वहीं ये बात याद रखें कि यही औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के सूरह अनफाल के अंदर बयान किया, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, याद रखो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, तुम्हारे लिए इम्तिहान हैं। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की दूसरी जगह पर यह कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें तुम्हारे मालो दौलत की कसरत व फरावानी और तुम्हारी औलाद की उल्फत व मोहब्बत तुम्हें इस बात पर गाफिल न कर दे, तुम्हें इस कदर अंधा न कर दे कि तुम अल्लाह के जिक्र अस्कार से गाफिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बने, आपके लिए खुशी का बाइस बने, आपके दिल का सुरूर बने, तो आपको अपनी औलाद की तरबियत करनी होगी। आपको अपनी औलाद को इस्लामी नहज पर चलाना होगा। आपको अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करनी होगी, उन्हें अकायद की तालीम और तरबियत देनी होगी, उन्हें इबादत की तालीम और तरबियत देनी होगी। तभी जाकर के ये बच्चे, ये आपकी औलाद जिनसे आपको मोहब्बत है, ये औलाद जिनसे आप शफकत रखते हैं, ये आपकी आंखों की ठंडक बनेगी। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, वहर्रिज़ बनीका अलल आदाब फिस्सगर। ऐ लोगों, बचपन ही से अपनी औलाद की तरबियत करो। हर्रिज़ बनीका अलल आदाब फिस्सगर कैमा तक़िर्र बिहिम ऐनाका फिल किबर, ताकि ये बच्चे जब बड़े हो जाएं तो तुम्हारे इन बच्चों के जैसे तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचे, ये तुम्हारे लिए बाइस इज्जत हो, ये तुम्हारी सुरखरुई का जरिया बने, दुनिया में भी इज्जत और नेक नामी का ये जरिया बने और आखिरत में भी नजात का ये जरिया बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें और औलाद की तरबियत का आगाज इब्तिदा हम कहां से करें, यह सवाल है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, औलाद की तरबियत का आगाज, औलाद की तरबियत की इब्तिदा बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही से शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर कोई ये चाहता हो कि हमारी औलाद अच्छी हो, हमारी औलाद नेक हो, हमारी औलाद इस्लामी नहज पर चलने वाली हो, हमारी औलाद तौहीद पर चलने वाली हो, हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसे जोड़े का इंतखाब करे, अपने लिए ऐसे रफीका हयात का इंतखाब करे, अपने लिए ऐसे लाइफ पार्टनर का इंतखाब करे, अपने लिए ऐसी बीवी का इंतखाब करे। अगर लड़का खुद तलाश रहा है तो अपने लिए ऐसी बीवी का इंतखाब करे, और अगर सरपरस्त अपने बेटे के लिए किसी लड़की की तलाश कर रहा है तो उसे अपने लिए इसे बहू का इंतखाब करना होगा जो सौम सलात की पाबंद हो, जिसका अखलाक, जिसका किरदार, जिसकी सीरत, जिसका चरित्र आला हो, उम्दा हो, ताकि उसके पेट से, उसके बतन से जो औलाद हो, उसके बतन से जो बेटे और बेटियां पैदा हो वो नेक हो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। उमूमी तौर पर 4 चीजों को देखकर लोग शादियां करते हैं। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा, कुछ लोग मालदारी को फौकियत देते हैं। वलिहसबिहा, कुछ लोग खानदान को देख कर के हसब व नसब को देख कर के रिश्तेदारियां कायम करते हैं। वलिजमालिहा, और कुछ लोग खूबसूरती के दीवाने होते हैं। कुछ लोग खूबसूरती को फौकियत देते हैं, अहमियत देते हैं। वलदीनिहा, लेकिन अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जो तकवा शियारी को, दीनदारी को अहमियत देते हैं। फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नेक बीवी को तलाश करके, नेक बीवी का इंतखाब करके तुम कामयाब हो जाओ। तरबत यदाक, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नुकसान उठाना होगा, तुम्हारे हाथों को खाक लग जाएंगे, तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को दुनिया की तमाम चीजों में सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती मता कहा है। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें फायदा उठाने की हैं, और सबसे बेहतरीन चीज, सबसे आला चीज, सबसे अच्छी चीज अगर कोई है तो वो है नेक बीवी। आपने शादी कर ली, आपने एक सालिहा लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल किया, आपने उसको अपनी रफीका हयात बना लिया। अब एक जोड़े की सबसे ज्यादा जिस चीज की ख्वाहिश होती है वो ये कि जल्द अज जल्द अल्लाह तबारक व तआला उसके घर आंगन को खुशियों से भर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद से नवाज दे। हर एक की ये ख्वाहिश होती है। शादी हो गई, अब अल्लाह से उम्मीद लगाता है कि अल्लाह जल्द औलाद से अता कर दे ताकि हमारे घर आंगन में खुशियां बिखेर जाएं, खुशियां हों। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हमें और आपको क्या करना है? जो नौजवान हमारे, उनको क्या करना है? हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करनी है, औलाद के लिए दुआएं करनी है, ऐसी औलाद जो नेक हो। नेक औलाद के लिए दुआएं हमें करनी है मसलसल, जैसा कि अंबिया व रसूल का तरीका रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला औलाद से नहीं नवाज रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जब भी हाथ उठाते हैं तो दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार आलम तुम मुझे नेक औलाद से नवाज दे। इसी तरीके से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, अल्लाह से औलाद का मुतालबा किया, तो उन्होंने दुआ की, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, परवरदिगार आलम तू मुझे नेक ज़ुर्रियत अता फरमा दे, यकीनन तू दुआएं सुनने वाला है। इन्नका समीउद दुआ, तू हमारी दुआ को रद्द करने वाला नहीं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में इबादुर रहमान की सिफात गिनाते हुए, सिफात बयान करते हुए, उनके औसाफ को बयान करते हुए फरमाया, ये इबादुर रहमान की सिफत मोमिनीन की खूबी है, खासियत है कि जब उनके हाथ आसमान की तरफ उठते हैं और वो अल्लाह से दुआओं का मुतालबा करते हैं तो वो कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ऐ परवरदिगार आलम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, ऐ अल्लाह तू हमें ऐसी बीबियां नवाज, ऐसे बेटे नवाज जो हमारी आंखों की ठंडक बने, और ऐ परवरदिगार आलम तू मुझे नेक लोगों का इमाम बना दे। ये मोमिनीन की सिफत है। जब अल्लाह से दुआएं करते हैं, औलाद का मुतालबा करते हैं, जब अल्लाह से औलाद मांगते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि परवरदिगार आलम तो हमें नेक औलाद अता फरमा। अगर नेक औलाद देना है तो दे, वरना बे औलाद ही सही है। मेरे भाइयों, शादी हो गई तो आपको नेक औलाद के लिए दुआ करनी है, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको औलाद अता कर रहा है तो उस अता पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आप शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद अता करेगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर कुफ्र का रास्ता अपनाते हैं, कुफ्र इख्तियार करते हैं, तो आप ये याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दी, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अब बारी आती है अकीका करने की।
अगर बेटा अल्लाह ने नवाजा तो 2 बकरे आप जबा कीजिए और कोई अच्छा सा नाम उसका रखिए। एक आदमी हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आया और उसने हजरत उमर बिन खत्ताब से शिकायत की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बात नहीं मानता, ये मेरा कहा नहीं मानता, ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, इसका बर्ताव हमारे साथ अच्छा नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि क्या बात है, तुम्हारे वालिद मोहतरम इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, क्या मसला है? उस लड़के ने हजरत उमर बिन खत्ताब से कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप अपना फैसला सुनाने में थोड़ा तवक्कुफ इख्तियार कीजिए, थोड़ा आप रुकिए, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। आपको तो ये बात मालूम है कि औलाद का हक उसके बाप पर क्या है, औलाद पर उसके वालिद का हक यह है कि वो अच्छी औरत से शादी करे, लेकिन ऐ उमर बिन खत्ताब, इसने एक हबशिया लड़की से शादी कर ली और जब मैं पैदा हुआ तो इसने मुझे गोबरीला नाम रख दिया, जिसका माना होता गोबर का कीड़ा। अब बताइए, इसने पहले मेरा हक अदा नहीं किया और ये आज मुझसे अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है, तो मैं कैसे इसके हुकूक को कैसे मैं पूरा करूं? मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि आप पहले अपनी औलाद के हुकूक को पूरा कीजिए, फिर औलाद से ये उम्मीद रखिए कि ये औलाद जब आपकी बड़ी हो तो ये औलाद आपके साथ अच्छा सलूक करेगी, आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगी। अगर आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करते, आप अपनी औलाद के हुकूक को पूरा नहीं करते, तो फिर आप ये याद रखें कि आपकी औलाद आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये बच्चा जब 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो आप बच्चे को नमाज का हुक्म करें, उसकी उंगलियां पकड़ करके आप मस्जिद में लाएं, इस्लामी नहज पर उनकी तरबियत करें, आप नमाज का हुक्म करें। वज़रिबू अलैहिम वहुम अबनाउ अश-सनीन, और 3 साल की मुद्दत दी गई, 3 साल आपको ट्रेनिंग देनी है, बच्चे को तरबियत देनी है, बच्चे को सिखाना है। और अगर 3 साल के बाद वो 10 साल की उम्र को क्रॉस कर जाए, फिर वो नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज का एहतमाम नहीं करता, तो उनको मारो, ये इस्लाम का हुक्म है। अभी बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले आप उसको कलेमाए तौहीद सिखाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में आप उनको बताइए, सहाबाए कराम के वाक़यात से उनको रोशनास कीजिए, छोटे ही से उनके अकायद की और उनके इबादत की तरबियत कीजिए, तब जाकर के ये बच्चे जब बड़े होंगे तो आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, 20-25 मिनट के अंदर मुझे बात रखने को कही गई थी। बहरहाल आप ये याद रखें कि आप जैसा करेंगे, आपका जो तौर तरीका होगा, आपकी जो तर्ज जिंदगी होगा, आपका जो लाइफ स्टाइल होगा, आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां उसी तर्ज जिंदगी को इख्तियार करेगी, वही लाइफ स्टाइल इख्तियार करेगा। आप मिसाली बने, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, तो यकीनी तौर पर ये बच्चे, आपकी औलाद जब बड़ी होगी तो ये आपकी आंखों की ठंडक बनेगी। वरना फिर उस वक्त आप शिकायत करेंगे, लोगों को कहते फिरेंगे कि मेरी औलाद मेरी बातें नहीं मानती, मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, मेरे हुकूक अदा नहीं करती। उस वक्त आपकी शिकायत बेकार चली जाएगी, बेमाना हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये औलाद जो अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये औलाद जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक नेमत के तौर पर, एक अमानत के तौर पर हमें हवाले किया है। मेरे भाइयों, आप अपनी औलाद की दुनियावी जिंदगी की भी फिक्र कीजिए और उखरवी जिंदगी की भी फिक्र कीजिए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने दोस्त अहबाब को, तमाम लोगों को जिनसे आपको मोहब्बत है, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, उस आग से डरा दो, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद,
जिस आग की देख रेख करने वाले फरिश्ते बड़े तुन हैं, बड़े सख्त मिजाज हैं। ला यासून अल्लाह, वो अल्लाह के किसी हुक्म की हुक्म अदौली नहीं करते, वो अल्लाह के किसी फरमान की नाफरमानी नहीं करते, वो अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं। और ये याद रखें, बरोज़े क़यामत आपको पूछा जाएगा आपकी औलाद के बारे में। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आपको आपकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। आप में से हर कोई निगहबान है, मुहाफिज है, लिहाजा उसे उसकी निगरानी के बारे में, उसकी मुहाफजत के बारे में, उसकी रइयत के बारे में बरोज़े क़यामत पूछ होने वाली है। और आप ये भी याद रखें कि अगर आप अपनी औलाद के साथ धोखाधड़ी से काम लेते हैं, आप अपनी औलाद की फिक्र नहीं करते, आप अपनी औलाद को इस्लामी नहज पर चलाने की कोशिश नहीं करते, अगर आप अपनी औलाद के शिर्क व बिदात को दूर करने की कोशिश नहीं करते, तो आप याद रखें आप पर जन्नत को हराम करार दिया जाएगा। मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। ये औलाद जो आपकी रईयत है, जो आपके ज़ेरे फरमान है, जो आपके मातहत है, अगर आप इसके साथ धोखाधड़ी करेंगे, इनकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, इनको अच्छे नहज पर चलाने की आप कोशिश नहीं करेंगे, इसके अकायद का ख्याल नहीं रखेंगे, इसकी इबादत का ख्याल नहीं रखेंगे, इसके अखलाक और कैरेक्टर को सुधारने की आप कोशिश नहीं करेंगे, तो बरोज़े क़यामत आप पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी और जन्नत आप पर हराम करार दी जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, अगर आपको अपनी औलाद से उल्फत है, अगर आप अपनी औलाद को कदर की निगाह से देखते हैं, तो आप अपनी औलाद की फिक्र करें, आप अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की कोशिश कर दें, हमेशा अपनी औलाद को अच्छा बनाने की कोशिश करें, इसलिए कि यह एक ऐसी दौलत है और एक ऐसी नेमत है कि अगर आप इसके पीछे खर्च करते हैं, आप इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आपका इसका बेनिफिट मिलने वाला है, इसका रिटर्न मिलने वाला है, इसका फायदा आपको इस दुनिया में भी मिलने वाला है और आखिरत में भी मिलने वाला है। आप अपनी औलाद को इस लायक बना दें कि जब आप दुनिया से चले जाएं, जब आप मरें, तो आपका बेटा खड़ा होकर के ये दावा पेश कर सके कि मैं अपने वालिद मोहतरम के जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। आप अपनी औलाद को इस लायक बनाएं कि आपकी औलाद आपके जनाजे की नमाज पढ़ा सके। आप अपनी औलाद को इस लायक बनाएं कि आपकी औलाद जब आप मर जाए, तो जब भी उसके हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो, तो वो तो आपके लिए दुआएं खैर करे, आपके लिए दुआएं करे। अब दुनिया भर की चीजों को जमा करने में, दुनिया की चीजों को घर में लाने में और दुनिया की चीजों में आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो असल पूंजी है, जो आपका असल कैपिटल है, उसके पीछे आप खर्च नहीं करते, आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के बच्चे, हमारे मुस्लिम मुआशरे के बच्चियां इस तरीके से गली कोचों में, उन औकात में जिन औकात में बच्चे पढ़ाई करते हैं, घूमते फिरते नजर नहीं आते। आप गैरों के इलाके में चले जाएं, आप गैरों के मोहल्लात में चले जाएं, आपको नजर आएगा मगरिब से लेकर के इशा के बीच आपको कोई बच्चा बाहर दिखता हुआ नहीं मिलेगा, खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अफसोस की बात है, ये उम्मत, जिस उम्मत की जो किताब है, जो इस्लामी किताब है, जिसको उन्होंने आसमानी किताब माना है, जो उसके लिए गाइडलाइन की हैसियत रखती है, उसका पहला लफ्ज इकरा से हुआ था। लेकिन ये उम्मत आज कहां खड़ी है? मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें अपनी औलाद की कदर करनी है। हमें अपने औलाद की कदर करने के साथ साथ उनका ख्याल रखना, सिर पे कपड़े पहना देना, उनके लिए खाने का इंतजाम कर देना, यही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना, खाई जिंदगी हो या उखरवी जिंदगी हो, दोनों को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी आप पर है। और आपको आपकी जिम्मेदारी के बारे में बरोज़े क़यामत पूछा जाएगा। आपसे सवाल होगा, ऐ बंदे बता, हमने आपको औलाद दी थी, हमने आपको बेटा दिया था, हमने आपको बेटी दी थी, तुमने इसका कितना ख्याल रखा, इसकी कितनी फिक्र की, इसकी जिंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है? उस वक्त आपके पास क्या जवाब होगा? हम में से हर एक को तैयार रहना है इस सवाल के जवाब देने के लिए कि अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के दरबार में हम क्या जवाब देंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इस मौजू पर फिर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम, तो हमें
اپنی اولاد سے محبت کرنے اور اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ کرنے، ان کی حفاظت کرنے، اولاد کو اسلامی نہج پر، اسلامی طور طریقے پر چلانے اور اس کے لیے فکر مند رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔